सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यार DUCS से Amazon तक की जर्नी किस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। अभी तक मैंने पूरी कोशिश से आपको बताने की पूरी ट्राई करी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी MCA में क्या क्या कल्चर है, वहाँ पर कोडिंग किस तरीके से होती है और यहाँ तक पहुँचा कैसे जाता है। लेकिन इससे आगे की पूरी 3 ईयर की जर्नी और आगे की प्लेसमेंट की जर्नी आपको मेरे ही सुपर सीनियर जतिन भैया से पता लग सकती है। तो आज हमारे साथ है जतिन भैया। सो वेलकम जतिन भैया। एक बारी आप अपना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और ग्रेजुएशन कहाँ से करी है और इंटरेस्ट इन CS कैसे डेवलप हुआ वो सबको बता दो। Hey, hi Vasu. Thank you for having me. Hi everyone. My name is Jatin. Uh, so, uh, so I did my graduation like BSc Honors Computer Science from DU only, Deen Dayal Upadhyay College, and then I opted for MCA from Department of Computer Science, University of Delhi. Okay, so about the question, if you ask me, okay, so I was an average kid at school like everyone else, so like I opted for computer science in class 11th and 12th, and by the time like we completed 12th, I completed 12th, I had a basic understanding of how C++ works, and C++ was basically my primary language. And in terms of, let's say, data structures, I was aware what is a stack, what is a queue, but if you ask me to code up a stack queue, I could not have did it, right? So that was my level when I cleared, let's say I completed my 12th class. After that, it was the usual admission process and I landed into Deen Dayal Upadhyay College, and it was a like wonderful journey because first of all, I was really, passionate about computer science. So even before joining a college, I was pretty sure that I have to take up this course, कि यही course लेना है मेरे को और कोई किसी course में नहीं जाना है. So I was pretty clear on that. So it was just about choosing a college for me. So every day, like I would go into college. So my main agenda or my main aim would be to learn something new. Okay. So because ग्रेजुएशन में सब नए सब्जेक्ट्स होते हैं और पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो सब बहुत अच्छा लगता है, नया नया लगता है. तो इनिशियली ग्रेजुएशन का पूरा टाइम तो सिर्फ इसी चीज में निकल गया कि नए सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं. कोडिंग होती थी, लैब्स होती थी. लैब्स तो आई थिंक सब कॉलेजेस में होती हैं कंप्यूटर साइंस में. तो दैट वाज प्रीटी मच इट. फिर लाइक बाय द टाइम 3 इयर्स पास्ड, वी रियलाइज्ड के लाइक कंप्यूटर साइंस थोड़ा समझ आने लगा है, ठीक ठाक कर लेते हैं, चीजें हो जाती हैं. तो फिर वी काइंड ऑफ न्यू लाइक ओवर द कोर्स ऑफ 3 इयर्स यू रियलाइज के विदाउट मास्टर्स थोड़ा डिफिकल्ट रहता है लाइक मूविंग फर्दर एंड थिंग्स लाइक दैट. सो वी डिसाइडेड कि लाइक मास्टर्स करते हैं. तो देन लाइक so there are a number of colleges for masters, right? So you have to apply in each of those and clear those entrances. So for entrance, basically या तो लोग coaching लेते हैं या फिर they do self study. So I opted for coaching. I had my reasons. Okay. Yeah. So at the end, I had a choice between MSc and MCA. So I had some thoughts. I had some arguments of that applied to my situation. So I thought like MCA would be a good course for me, and then I chose MCA. Okay. So that is how, yeah. तो आई होप यार सबको क्लियर हो गया होगा कि इनकी पास जर्नी किस तरीके से रही और इन्होंने DU MCA तक अपनी जर्नी किस तरीके से कवर करी है. तो मेरा अगला क्वेश्चन यार आपसे ये रहेगा कि हाउ यू डिड योर प्रिपरेशन फॉर DU MCA एंड वर यू गुड एट मैथ्स. Okay. Yeah, as I said, right, like you could always take a coaching. So usually coaching के लिए Delhi के around 2 institutes major होते हैं, Sandmax and Landmark. Okay. So Sandmax उस time पे काफी famous था. So we thought like Landmark चलते हैं. So we decided to go for Landmark. Okay. And it basically coaching का main agenda क्या होता है ना? You are in like-minded people set होता है. Every weekend you have to go, you have to take up classes. Yeah. So अच्छा पेस ऑफ ग्रोथ होता है कि अगर सिलेबस कवर करना है, फॉर एग्जांपल एक एंट्रेंस के लिए, तो वीक ओवर वीक धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर हो जाता है एंड यू हैव लाइक लॉट ऑफ पीपल. सो वो मोटिवेशन भी थोड़ी थोड़ी रहती है, प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है थोड़ी, ये वो. तो आई थॉट इट वाज लाइक वर्थ इट टू इन्वेस्ट इन कोचिंग. So but if you think like if you are motivated enough to like you study at home, I think it's perfectly possible to do it at home. And I know several people जिन्होंने self study करके बहुत आराम से कर लिया है. And about maths, I was not really good at maths. I would consider myself like below average in maths. Because in graduation, my main focus was always on computer science, and we had like one subject per semester for mathematics. So yeah, I did not really focus on mathematics, so I was not really good at it.
I am good at like basic mathematics, let's say basic लॉजिकल और लेट्स से अप टू 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, बेसिक्स होते हैं, प्लस माइनस वाले, आई एम डिसेंट एट दोज. बट इफ यू कम टू ग्रेजुएशन, इफ यू आस्क मी हाउ वाज आई, did I, if you are asking did I do well in my entrances were very hard for me, especially because of maths. So I was not really good at maths. So mera main, I knew that computer science was my strength, so I was playing on that. Or mathematics, like just push through it, like हार्ड वर्क करो, थोड़ा सा पढ़ लो, और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है. तो इट वाज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर मी. ओके, तो यार आपको पता लग गया कि इन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी. मैथ्स में वीक होने के कारण भी इन्होंने तब भी अपनी उसे स्ट्रेंथ बनाने की पूरी कोशिश करी, और आप सभी को भी यही करना चाहिए. अगला, जैसे कि यार हम जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बाहर से आते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये तकलीफ होती है कि यार हॉस्टल क्या है, किस तरीके से है हॉस्टल हमारे यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चों को अभी भी बहुत कंफ्यूजन है. तो एक बार ही बता दो हॉस्टल किस तरीके से है हमारे यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए. ओके, सो यूजुअली क्या होता है ना कि मास्टर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंबाइंड हॉस्टल्स होते हैं. सो हर कोर्स के शेयर में कुछ कुछ सीट्स आती हैं. तो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट आवर स्पेसिफिक एमसी कोर्स, तो हमारे शेयर में अबाउट 3-4 सीट्स बॉयज में आती हैं, शायद 6-7-8 समथिंग सीट्स गर्ल्स के शेयर में आती हैं. एंड इट इज डिवाइडेड अक्रॉस ऑल 3 years. तो लेट्स से इफ एनी ऑफ योर सीनियर्स आर करंटली इन हॉस्टल और वो सीट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो इफ यू आर अ जूनियर कमिंग right now, you would not get that seat because आपके सीनियर्स के पास ऑलरेडी हैं and they have the right. So जब वो लोग पास आउट होंगे और वो लोग हॉस्टल्स खाली करेंगे, then you would get a chance. तो usually हॉस्टल्स का ये रहता है. Secondly, taking admission into hostels is also kind of a gamble, right? First of all, you have to be outside a radius of 60 kilometers or something. Then you have to excel at your academics. Like every year there's a cut-off list or something के इतना परसेंटेज होना चाहिए, या फिर आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए. लेट्स से एमसीए का अगर कोर्स है और 4 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो जिसकी रैंक ऊपर होती है उसको प्रेफरेंस मिलती है हमेशा. Okay. So that is how it works. But I don't think hostels are a concern, like even if you are not from Delhi, क्योंकि आसपास बहुत सारे पीजीज और लाइक देयर आर लॉट ऑफ प्लेस टू स्टे. तो कमला नगर हो गया पूरा, और पूरा एरिया ही उस तरीके से बिल्ट है कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बच्चों को रहने के लिए इतनी दिक्कत नहीं होती है. तो यू विल फाइंड समथिंग, लाइक डेफिनेटली फाइंड समथिंग. ओके, तो यार आपने इनकी बात सुन ली कि हॉस्टल जो है वो बिल्कुल भी कंसर्न का इशू नहीं है, क्योंकि आसपास पूरा एरिया ही स्टूडेंट्स का है. तो आपको बहुत सारे पीजीज मिल जाएंगे, फ्लैट्स मिल जाएंगे. मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है और बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि डीयू एमसीए की प्लेसमेंट्स क्या है और एवरेज और मैक्सिमम पैकेज कितना जाता है, जो हर बच्चा कंसर्न में रहता है. या सो ओके, तो पहले तो मेरे को ये लगता है कि लाइक स्टूडेंट्स क्या कहूँ, जैसे हम भी बहुत कंसर्न थे यूजुअली जब हम ग्रेजुएशन के बाद आए थे. तो आई थिंक ये थोड़ा ओवर हाइप्ड होता है हमेशा, है ना, कि किस कॉलेज में कितने का पैकेज जा रहा है, कितने का वो जा रहा है. तो ये काफी ओवर हाइप्ड होता है. प्लस हमें अच्छे से पता नहीं होता कि जज कैसे करना है प्लेसमेंट्स को. मतलब हम जज कैसे करते हैं कि हाईएस्ट पैकेज इतना गया, 30 लाख गया, 40 लाख गया हाईएस्ट पैकेज. ठीक है, हम कभी ये नहीं सोचते कि वो 30-40 लाख की कितनी कंपनीज आई थी और कितने बच्चे प्लेस हुए उसमें. सेकेंडली, हम मीडियंस को कभी कंसिडर नहीं करते. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क मी एवरेज, if you ask me, the definition of average would be like एक कंपनी आई 4 लाख की, 5 लाख की, और एक कंपनी आई 30 लाख की. दोनों को ऐड कर दोगे तो एवरेज 20 लाख का हो जाता है. It doesn't quite work like that. You have to consider the median package के most number of companies जो आ रही हैं वो कितना पे कर रही हैं. तो I would say जितना एक फ्रेशर को जब कंपनी हायर करने आती है ना, तो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ एंट्री बैरियर सैलरी डिसाइडेड होती है यूजुअली. तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, यूजुअली वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी नहीं करती है. तो लेट्स से आप टायर 1 कंपनीज की तरफ देख रहे हो, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ देख रहे हो, तो उनका डिसाइडेड है कि इस रेंज में हम लोग फ्रेशर्स को पे करेंगे. वो यूजुअली इतना फर्क नहीं करता, उसमें थोड़ा प्लस माइनस 10-20 का फर्क आता है. तो दैट इज व्हाट टायर 1 कंपनीज पे. फिर उसके बाद थोड़ी सी नीचे वाली कंपनीज, उनका अपना मार्जिन सेट होता है, सो if you ask me especially about DUMCA या फिर DUCS में MCA plus MSc, I would say you will get decent number of opportunities.
You will get decent number of companies. Plus companies ऐसा नहीं होता हमेशा कि एक कंपनी इस साल आई है तो वो अगले साल भी आएगी, या फिर इस साल कोई कंपनी नहीं आई है तो अगले साल वो कंपनी नहीं आ सकती. लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे ओयो आई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर. तो ओयो पहली बार आई थी. इस बार पेटीएम आई थी, पेटीएम पहली बार आई है. तो यूजुअली जैसे हर कॉलेज में क्या होता है, लाइक हाउ डज इट वर्क, राइट, ऑल द सिचुएशन कैसे काम करती है. यू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स, and then it is the role of the placement coordinators to reach out to companies and call them in campus. That is how it works in every college, including IITs, including NITs. बस थोड़ा फर्क इतना होता है कि NITs में you have that name, तो when you call up a company and say कि हम NIT से बोल रहे हैं, तो it's easier for them to get people. DU में थोड़ा सा फैक्टर वो कम हो जाता है कि यू कैन नॉट कॉल अप रैंडम कंपनीज. आपको देखना पड़ेगा कि किस कंपनी को कॉल करना है और उनको कैसे बताना है कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं. तो यूजुअली हमारे केस में क्या होता है कि दिल्ली के अराउंड काफी कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी जानती हैं DUCS को और काफी सालों से आ रही हैं, या फिर हमारा तो DUCS का वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है ना, हमारा एल्यूमिनाई नेटवर्क काफी अच्छा है. तो हमारे मल्टीपल एल्यूमिनाइज मल्टीपल कंपनीज में प्लेस्ड है ऑल थ्रू आउट ईयर्स, तो वो अलग अलग पोजीशंस पे पहुंच गए हैं. तो हमारे पास भी एक वैरायटी ऑफ कंपनीज हैं कि ये 20, 25, 30, 40 कंपनीज हैं जहां पे हमारे सीनियर्स हैं, या जो कंपनीज अप्रोचेबल हैं एंड दे पे डिसेंटली. तो they will reach out to those companies, और अगर वो company is open to hiring in any college, then they will come to UCS as well. So that is how the entire situation works. So usually you will find a decent number of companies and decent quality of companies as well, I will say. If you're asking about maximum package, I would say like it doesn't really matter honestly, like because only 1, 2 or like 5 of you will get that. It doesn't really matter. You should never choose a college based on the highest package, क्योंकि highest package always varies. अब मैं बोलूँ कि Amazon आई थी, इतना पैकेज देके गई, it will not be worth it, right? Because वो सबको नहीं मिलता. You have to see कि आप कहाँ पे stand करते हो. So if you are asking me median package of company, I'll say कि it's easy. It's you will get fair opportunities to get landed at a company which will, let's say, pay 10 LPA. Or 8 LPA or say 12 LPA. So usually this is the median which goes in DU. So you will get ample opportunities. इतने opportunities के आपको लगेगा कुछ companies के बाद कि मैंने ढंग से prepare नहीं किया इसलिए शायद हो नहीं पा रहा. And then you will realize कि अगर आप उससे नीचे वाली company में जा रहे हो तो it's probably because like you didn't prepare hard enough, or like others were better than you at that particular interview. Okay. So you will get enough opportunities is the right keyword here. क्योंकि अगर आप NITs में भी जाते हो और let's say बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, at the end of the day it's on you, right? अगर आप ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, if you are not able to show your skills in the interview, it really does not matter कि वो कंपनी कितना पे कर रही है और कितने बच्चों में आप हो, कैसा चल रहा है. बिल्कुल. At the end of the day it's about you. You have to prepare for it and you have to get it. The college will give you opportunities and DUCS will give you enough opportunities. You will not feel कि यार opportunities कम थी. I'm pretty sure of it, क्योंकि अभी COVID चल रहा था, फिर भी I'm seeing के like decent number of companies visited considering COVID, and like most of the people have already been placed. So it's going pretty well, I would say. Yeah. Okay. तो आई होप यार आप सबके आंसर्स, जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे, और ये काफ़ी सही आंसर था कि कभी भी हमें प्लेसमेंट को जज नहीं करना चाहिए कि यार वो कितना मैक्सिमम पैकेज दे रही है, और हमें बेसिकली ये देखना चाहिए कि मैक्सिमम बच्चे कितने पैकेज पे प्लेस हो रहे हैं, और अपने टैलेंट को खुद जज करना चाहिए. अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने एक बार सब कुछ वैसे बता तो दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कंपनीज के नाम बता दो जो कि हमारे कैंपस में आती हैं, विजिट करती हैं हर साल. Okay. Okay. So let's say Amazon usually आ जाती है. तो Amazon, so there's a company called Cvent, and Oyo, Paytm, TrueMinds, and Equalite. I'm not honestly good at remembering names. तो अभी तो मेरे को यही याद आ रहा है ऊपर से. So basically, let's say if you are in a college, right, you would never have heard of these companies. That is the point. Like if you are in graduation, even if you are in masters, you would not have heard of these companies. तो इनके बारे में तभी सुनने में आता है जब ये कैंपस में आती हैं. बिल्कुल.
So I don't really remember the names. I'm sorry. Yeah. ओके, तो यार आपको Yeah. पता लग गया होगा कि फिर भी कौन-कौन सी कंपनीज़ ऊपर ऊपर से ही आपको पता लग गया होगा कि हमारे कैंपस में विज़िट करती हैं। तो एक बारी आप ओवरऑल एक्सपीरियंस एट डीयूएमसीए बता सकते हो कि आपकी 3 साल की जर्नी क्या कैसी रही और आपने क्या-क्या सीखा? टीचर्स कैसे थे? कैंपस कैसा है? और ओवरऑल आपकी ग्रोथ किस तरीके से हुई? Right. Okay. Uh, so if I talk about my journey specifically, it was pretty well. I'd say it was decent. Like मेरा जो main aim था DMCA में admission लेने का, it was कि अपना थोड़ा जो टेक्निकल ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करना है। लेट्स से अगर कुछ डेवलपमेंट स्किल्स है हमारे पास तो उनको इंक्रीज करना है। लेट्स से टू बी पार्ट ऑफ सम कम्युनिटीज या कुछ मीटअप्स हो रहे हैं या फिर कुछ अलग तरीके का टेक्नोलॉजी। दिल्ली में बहुत तरीके के मीटअप्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज होती हैं। तो मेजर एम मेरा तो यही था कि उस एरिया में अपनी टेक्निकल ग्रोथ को इंक्रीज करना। एंड इट वाज पॉसिबल बिकॉज लेट्स से आई वाज फ्रॉम बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। तो द सब्जेक्ट्स आर यूजुअली द सेम, राइट? आपके सीएस ऑनर्स के सब्जेक्ट्स और एमसी के सब्जेक्ट्स यूजुअली सेम होते हैं। तो यूजुअली कोर्स भी सेम होता है, बुक्स भी सेम होती हैं। तो you have already gone through those books, so you have enough time to do other things. So for me specifically, I had enough time to do other things because I had already done those things well in my graduation. So usually academics was never an issue. If you ask me in terms of academics, assignments, decent number of assignments milte hain like in every college, I'd say. So academics is fine. I don't think academics will be an issue for you in DUMCA. It is not so hard and it is not very easy. You will work hard and you will learn well and it will be all good. Academics are usually not a concern at you, especially. So that's about it. And in terms of, let's say, college life, I'd say let's say I was from an off campus college, right? So मैंने कभी north campus की life नहीं देखी थी. So if you ask me, मेरे लिए तो काफी नया था सब कुछ, like आसपास की कमला नगर एरिया, हडसन वगैरह का एरिया, और वहाँ पे मतलब like खाने पीने की जगहें, और let's say तो you will get to see the north campus crowd, right? So वो पूरा उसमें रहता है. तो yeah, if you ask me especially about the department, so department, the one good thing about the department is we have our own office, right? So कोई भी आपको administration work है तो you have your own office, you can simply walk in and get your things done. बाकी MSc courses में it's usually allotted into colleges के 100 बच्चे की रोडीमल में जाएंगे, 100 बच्चे इस कॉलेज में जाएंगे, 100 बच्चे हिंदू में जाएंगे. हमारे इधर क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं 40, तो we have our own administration office. So that is pretty much it. और छोटा सा ही है वैसे तो डिपार्टमेंट, सो फटाफट यू कैन रीच आउट क्लासेस, इस लैब से उस लैब में जाना है तो इट्स अ स्मॉल प्लेस, और लाइक इट्स अ गुड जर्नी बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, राइट? मतलब आप ऐसा होता है कभी दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाते हैं तो यू नेवर थिंक कि किस जगह जा रहे हैं. द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप कुछ लोगों के साथ जा रहे हैं और कुछ दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो यू विल एंजॉय योर टाइम देयर. सो बीइंग एट अ कॉलेज इज लाइक दैट. यू गो टू अ कॉलेज, इट डज नॉट रियली मैटर कि क्या जगह है, क्या कॉलेज है. एट द एंड ऑफ द डे इट्स द पीपल यू कनेक्ट विद, राइट? इट्स द फ्रेंड्स यू गेन ओवर टाइम. सो वो अच्छा रहता है पूरा सिचुएशन. तो इट विल बी अ गुड 3 years of your life, I'll say. It will be cool.